નમસ્કાર, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારની શરૂઆત કરીએ તો સમગ્ર વિશ્વને હાલમાં કોરોનાના નવા વેરિયન્ટ ઓમિક્રોનનો ડર સતાવી રહ્યો છે। આ વેરિયન્ટ એટલો ખતરનાક છે કે તે બીજી લહેર વખતે આવેલા ડેલ્ટા વેરિયન્ટ કરતાં પણ વધુ ઝડપથી લોકોમાં ફેલાય છે। વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાના કહેવા પ્રમાણે માત્ર 20 દિવસના ટૂંકા ગાળામાં આ વેરિયન્ટ 60 થી 70 દેશોમાં ફેલાઈ ચૂક્યો છે અને તે હજુ પણ વધુ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે એવી વકી છે। WHO એવું પણ જણાવ્યું કે આ વેરિયન્ટના કારણે મોતનો આંકડો વધી શકે છે અને તે માટે હોસ્પિટલોમાં સજ્જતા વધુ જરૂરી છે। દરમિયાનમાં ભારતના કોવિડ ટાસ્ક ફોર્સના વડા ડોક્ટર વી.કે. પૉલે જણાવ્યું કે ભારતે એવા વેક્સિન પ્લેટફોર્મ તૈયાર કરવા જોઈએ જેમાં વાયરસના બદલાતા વેરિયન્ટ અનુસાર ઝડપથી પરિવર્તન કરી શકાય। કોરોનાના ઓમિક્રોન વેરિયન્ટના ઝડપી ફેલાવાની ચિંતા વચ્ચે ડોક્ટર પૉલે કહ્યું કે ભારતમાં વાયરસ એવા તબક્કા તરફ આગળ વધતો જણાઈ રહ્યો છે જ્યારે એનાથી ઓછું અથવા મધ્યમ સંક્રમણ ફેલાય છે। આ સ્થિતિને એન્ડેમિસિટી કહેવાય છે। આ ભારતમાં અત્યાર સુધીમાં ઓમિક્રોનના 61 કેસ નોંધાયા છે। મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ કેસ નોંધાયા છે। અત્યાર સુધીમાં અહીં 28 કેસ નોંધાયા છે। આ સિવાય રાજસ્થાનમાં 17, કર્ણાટકમાં 3, ગુજરાતમાં 4, કેરળમાં 1 અને આંધ્રપ્રદેશમાં 1, દિલ્હીમાં 6 અને ચંડીગઢમાં 1 કેસ નોંધાયા છે। ખાસ વાત એ છે કે ઓમિક્રોનથી સંક્રમિત મોટાભાગના લોકોએ વેક્સિનના બંને ડોઝ લઈ લીધા છે। કોરોનાનો નવો વેરિયન્ટ ઓમિક્રોન ભારતમાં પણ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે। ગઈકાલે દિલ્હીમાં 4 નવા કેસ સામે આવ્યા બાદ સાંજે મહારાષ્ટ્રમાં પણ 8 નવા કેસ નોંધાયા હતા। આ 8 સંક્રમિત દર્દીમાંથી 7 મુંબઈના અને 1 વસઈ વિરારનો છે। ખાસ વાત એ છે કે તેમાંથી કોઈ વ્યક્તિ વિદેશ ગઈ નથી। હવે સમગ્ર દેશમાં ઓમિક્રોનના કેસ વધીને 61 થઈ ગયા છે। ના કેસીસ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યા છે। ઓમિક્રોન પોઝિટિવના કેસ 61 થઈ ચૂક્યા છે। કોરોનાના નવો વેરિયન્ટ છે ઓમિક્રોન એ બહુ જ ખતરનાક છે, જે ડેલ્ટા વેરિયન્ટ કરતાં પણ વધારે ઝડપથી લોકોમાં સંક્રમણ ફેલાવી રહ્યું છે અને 61 કેસ નોંધાઈ ચૂક્યા છે। મહારાષ્ટ્રમાં 28 કેસ નોંધાયા છે, ગુજરાતમાં 4 કેસ નોંધાઈ ચૂક્યા છે અત્યાર સુધીમાં। આ સિવાય અન્ય રાજ્યોમાં પણ કેસ નોંધાયા છે। WHOએ પણ આ અંગે ચેતવણી આપી દીધી છે અને કહ્યું છે કે આ એવો વેરિયન્ટ છે કે જે ખતરનાક છે અને માત્ર 20 દિવસના ગાળામાં 60 થી 70 દેશોમાં તે ફેલાઈ ચૂક્યો છે। અને આ વેરિયન્ટને કારણે વિશ્વમાં 1 જણનું મોત થયું છે અને તે યુકેમાં થયું છે અને યુકેના વડાપ્રધાન બોરિસ જોન્સને આ બાબતે 2 દિવસ પહેલાં જાહેરાત કરી હતી અને ઓમિક્રોનના જે કેસીસ છે એ જે ઝડપે ફેલાઈ રહ્યા છે, સંક્રમણ ફેલાઈ રહ્યું છે, તેને કારણે લોકોમાં ચિંતા ફેલાઈ છે। ભારતમાં તો છે જ, સાથે સાથે વિશ્વમાં પણ ચિંતાનું મોજું ફેલાઈ ગયું છે। તમામ રાજ્યોને સુસજ્જ રહેવા માટે આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે, નિર્દેશ કરી દેવામાં આવ્યા છે। કેન્દ્ર સરકારના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અને આરોગ્ય સચિવ દ્વારા પણ દરેક રાજ્યોના તેમજ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના આરોગ્ય વડાઓને, આરોગ્ય સચિવોને પત્ર લખીને જાણ કરી દેવામાં આવી છે અને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે। સરકારી હોસ્પિટલ હોય કે ખાનગી હોસ્પિટલ તમામને એલર્ટ મોડ પર રાખવાની નિર્દેશ આપી દેવામાં આવ્યો છે, કારણ કે ઓમિક્રોનના કેસ જે ઝડપે વધી રહ્યા છે તે ચિંતાનો વિષય છે દેશ માટે। અને ભારત દેશમાં જે પ્રકારે બીજી લહેર વખતે જે પ્રકારે કેસ ફેલાયા હતા અને જે રીતે મોટી સંખ્યામાં લોકોને કોરોના પોઝિટિવ થયો હતો, એવી જ રીતે ઓમિક્રોનના જે નવો વેરિયન્ટ છે કોરોનાનો તેના કેસ પણ વધી રહ્યા છે અને એ ચિંતાજનક છે। આ ચિંતાજનક આંકડો વધુ ન ફેલાય, સંક્રમણ ન થાય તે માટે સચેત રહેવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે। તો આ જ મામલે આપણી સાથે जोड़ाई चुका है हमारा दिल्ली ना वरिष्ठ संवाददाता अजीत श्रीवास्तव। अजीत जी, जिस तरह से देश में ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं, अब तक 61 केस दर्ज किए गए हैं, तो क्या माहौल है, किस तरह से ये फैल रहा है, कुछ और जानकारी है क्या आपके पास? बिल्कुल सत्य पर अभिजीत जी, जैसा से बात करें हम तो लगातार स्प्रेडिंग जो है, यानी हम कहें तो लगातार एक दूसरे के संपर्क में आने की वजह से ये जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है वो लगातार फैल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस नए वेरिएंट को अगर आपको बचना है तो आपको 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है।
मास्क तो लगाना ही है, लेकिन अब इस वेरिएंट से अगर आपको बचना है, सावधानी बरतनी है, तो 2 गज की दूरी अब आपको रखनी ही पड़ेगी। आप अगर इसके नहीं रखते तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर तकरीबन जो 6 केसेस रिपोर्ट दर्ज हुए, एक जो है वो वापस होके गया है सही होकर, लेकिन जो 5 अभी इलाज चल रहा है उसमें से खैर सीरियस तो कोई नहीं है, लेकिन उनको सर्दी और गले में खराश अभी भी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो एयरपोर्ट से फरार हो गए, जिनके बारे में तहकीकात चल रही है, पूछा चल, लेकिन अभी ट्रैकिंग नहीं कर पाए हैं सरकार या एजेंसियां। उनका कहां पता है, कहां रुके हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा। लेकिन ऐसे लोग अगर आपके संपर्क में कहीं आ जाते हैं तो फिर आप भी और हम भी इस नए वेरिएंट की चपेट में आ जाएंगे। यानी ओमिक्रॉन इतना खतरनाक है कि आपको 1 मीटर के दायरे में अपने चपेटे में ले लेता है। एक डर है, एक खौफ का माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है। अगर हम आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये फिर से तबाही जो है ना, हम कहें कि कोविड-2 की तरह फिर से यहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इससे बचना है तो हमें तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा ही, खासकर 2 गज दूरी का। मैं बार बार कह रहा हूं 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। इस वेरिएंट से बचने के लिए आपको 2 गज की दूरी पर रहना होगा, तभी आप इसको हम मात दे पाएंगे। लेकिन सरकार जो इंतजाम तो कर रही है, लेकिन अभी भी आज सुबह भी अभिजीत जी मैं तमाम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे तमाम लोगों से बातचीत किया, अभी भी लापरवाही पूरी से देखी जा रही है। लोग मास्क नहीं लगा रहे, लोग एक दूसरे से चिपक के बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग समझ नहीं रहे कि ये कितना बड़ा खतरनाक है। एक खतरा हम झेल चुके, लेकिन दूसरे खतरे के लिए हम फिर भी सजग नहीं हो रहे, संभल नहीं रहे, अभी भी लापरवाह घूम रहे हैं और दावा कह रहे हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं, कोविड है नहीं। तो ऐसे लोग जो हैं खुद भ्रम फैलाते हैं और लोगों को भी भ्रम में अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ऐसे लोग से भी हम कहना चाहेंगे कि देखिए, ये वेरिएंट किसी को पहचान के नहीं आता, ये किसी को ये नहीं सोच के आता कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, ये आप ताकतवर हैं। ये अगर आ गया तो आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है कि अगर आपकी इम्यून सिस्टम डाउन है तो आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए सभी लोग को इस वेरिएंट से बचने के लिए 2 गज दूरी, मास्क लगाना जरूरी, बहुत जरूरी होगा। अभिजीत जी। बिल्कुल अजीत जी, जिस तरह से डॉक्टर वीके पॉल ने भी आज चेतावनी दी है कि देश में, भारत देश में ऐसे वैक्सीन प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है ताकि ये जो संक्रमण है, जो वेरिएंट है, वो ज़्यादा फैल न सके। और जैसे जैसे वेरिएंट चेंज होते जाते हैं, क्योंकि कोरोना जो है, कोरोना वायरस, वो अलग अलग वेरिएंट के तौर पे आते हैं, अलग अलग स्वरूप में आते हैं। तो उससे बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने की ज़रूरत है। तो क्या इस दिशा में कुछ सोच विचार चल रहा है क्या केंद्र सरकार की ओर से या स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से? देखिए, साउथ अफ्रीका की नीति आयोग के जो मेंबर हैं, उनके साथ ऊपर है कहना है कि वीके पॉल साहब का, डॉक्टर वीके पॉल का, कि देखिए जो ये म्यूटेशन होता है, यानी हम कहें जो लगातार जो म्यूटेट होकर नया वेरिएंट में सामने आता है, वो कहीं ना कहीं म्यूटेशन चलता रहेगा। ये जो म्यूटेशन है ये स्प्रेडिंग 1 मीटर के दायरे में करता है, इसलिए 1 मीटर के दायरे से दूर रहना पड़ेगा। सरकार इस मसौदे को लेकर चर्चा कर रही है, बातचीत कर रही है। वो चाहती है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके या कोई भी ऐसा काम ना हो सके जैसे आम जनता जो कोविड-2 में सबसे अधिक परेशान रही, उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के बिजनेस खराब हो गए, वैसे हालात पैदा ना हो। देश में कई महीनों तक लॉकडाउन रहा, तो ऐसे कुछ हालात अगर दोबारा हुए तो फिर से देश तबाही के कगार पे हो जाएगा। इसलिए सरकार सजग है और एहतियात बरतते हुए तमाम उन लोकल प्लेटफॉर्म पर, तमाम उन जगहों पर जाकर एहतियात बरत रही है और प्रोटोकॉल का पूरा पालन करने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि नया वेरिएंट, जिस तरह से वीके पॉल ने कहा है, उस दिशा में अगर कुछ रहता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं सावधानी बरती जाए और उसके लिए एहतियात बरतते हुए जो भी कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे वो सरकार जरूर उठाएगी। बिल्कुल अजीत जी, एक और सवाल भी है कि एक ऐसी रिपोर्ट भी आई है कि जो विदेश से आ रहे फॉरेन टूरिस्ट है या जो इंडिया के जो लोग हैं वो विदेश से आ रहे हैं, उनको आरटीपीसीआर के लिए पहले से बुकिंग कराना जरूरी है, ऐसी एक रिपोर्ट आई है। हालांकि जिस तरह से हम देखते हैं कि सभी एयरपोर्ट पे अलर्ट कर दिया गया है, जितने भी जो हाई रिस्क कंट्रीज से आ रहे हैं या फॉरेन से आ रहे हैं, जितने भी टूरिस्ट, उन सबका एयरपोर्ट पे आरटीपीसीआर जरूरी है, क्योंकि जो जिस तरह से वेरिएंट फैल रहा है उससे बचाने के लिए या उसको फैलने से रोकने के लिए ये जो जरूरी है वो कदम उठाया गया। लेकिन
अब नई जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से पहले से बुकिंग करना जरूरी है, मतलब प्री बुकिंग करके इंडिया में आ सकते हैं, कहीं पे भी जाना है, एयरपोर्ट फॉरेन से आते हैं तो इंडिया में कहीं पे भी एयरपोर्ट पे जाना है तो पहले से बुकिंग होगी तभी आरटीपीसीआर होगा। तो ऐसे माहौल में किस तरह से लोगों को ये संक्रमण न फैले इससे बचाया जा सकता है और किस तरह से आरटीपीसीआर पे ज्यादा फोकस किया जा सकेगा? देखिए साथ पर है जी सर, बात करें हम कि एयरपोर्ट पे जब पहले 2 दिनों में या हम कह लगातार कुछ दिनों में जो टेस्टिंग हो रही थी उसमें घंटों वक्त लग रहा था और उस घंटों वक्त में जो ट्रेवलर थे यानी जो यात्री थे वो परेशान हो गए थे, क्योंकि जो हजारों हम कहें तो कई सैकड़ों की तादाद में भी वहाँ पैसेंजर एक साथ जब बैठे हुए हैं तो कम्युनिटी का जो स्प्रेडिंग है उससे भी फैल रहा था, एक डर का माहौल था। इसलिए सरकार ने इस तमाम चीज़ को देखते हुए मसूम अडिवा पर खुद दौरा करने गए और वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दौरा करने के बाद से ही कहा कि इस तरह की भीड़ जो इकट्ठा हो रही है, एक कम्युनिटी स्प्रेड का डर भी है, इसलिए आप पहले से ही प्री बुकिंग करके आएंगे तो बेहतर होगा और आपका समय अनुसार आपके टेस्ट होंगे और सही समय पे आप अपने घर जा सकेंगे। तो जो एक भीड़ है, जो एक लॉट है, उससे बचने की कवायद है, क्योंकि स्प्रेडिंग तगड़ी अगर हो गई तो कहीं कम्युनिटी अगर हो गया तो कम्युनिटी स्प्रेडिंग से फिर समस्या बढ़ जाएगी, फिर वही हो जाएगा जो आपने लास्ट ईयर देखा है माहौल, वैसा माहौल कोई नहीं देखना चाहता। इसलिए तमाम इस तरह के ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर आरटीपीसीआर आपके भी 72 घंटे के हैं वो भी मान्य होगा, लेकिन अगर आप जिस भी सिटी से आ रहे हैं, अगर उस सिटी में कोविड का हाई मामला यानी जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का है तो उस दिशा निर्देश के अनुसार जिस फ्लाइट से आ रहे हैं उन ट्रेवलर को यहाँ पर आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा, वो भी प्री बुकिंग साथ। अगर नहीं बुकिंग कराया तो आपको बैठ कर वहाँ बुकिंग का समय लेना होगा, जो स्लॉट होगा उसके बाद से आपको स्लॉट के अनुसार ही आके अपने टेस्टिंग करानी होगी और रिपोर्ट देना होगा। कि 500 रुपये और जहाँ 3,900 रुपये का जो टेस्ट है आरटीपीसीआर का जो अभी एयरपोर्ट पे हो रहा है, तो जो 500 रुपये का है वो 8 घंटे के में है और जो 4,000 के तकरीबन का जो चार्ज है वो 1 घंटे में आ जाती है रिपोर्ट। तो उसमें लोग के ऑप्शन जो है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करी सरकार चाह रही है कि कम से कम एक सहूलियत लोगों को दे जाए, एक सहूलियत देने के बाद से कहीं ना कहीं राहत जैसे उनको मिल सके, इसलिए वो चाहती है कि कुछ रेट का दायरा भी कम किया जाए फिलहाल। लेकिन आरटीपीसीआर को लेकर प्री बुकिंग के लिए ये एक सराहनीय कदम है सरकार का, क्योंकि जो भीड़, एक क्राउड जो जम रहा था, एक जो भीड़ अचानक आ जा रही थी एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट के दौरान, उससे कहने के लगाम लगने की कोशिश है। अभिजीत जी। अजीत जी, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से दुनिया के कई देशों ने बूस्टर डोज की शुरुआत कर दी है, भारत में भी बूस्टर डोज के लिए चर्चा चल रही है लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया, तो क्या ये जरूरी है, बूस्टर डोज जरूरी है? क्योंकि दोनों डोज लेने वाले कई जो है देश के लोगों जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो पॉजिटिव है वो पाया गया है, तो बूस्टर डोज कितना जरूरी है और बूस्टर डोज के लिए कब तक ये सरकार फैसला लेगी? देखिए सातों पर कि डॉक्टर बीके पॉल जो कि नीति आयोग के मेंबर, उन्होंने सातों पर यह कह दिया है कि इस वेरिएंट से बचने के लिए कहीं न कहीं आपको बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। तो ये बूस्टर डोज की घोषणा हम कहें कि कहीं न कहीं एक डॉक्टर बीके पॉल ने शुरुआत तो कर दी है, अब उसको लेकर सरकार के साथ सजग होती है और बूस्टर डोज को लेकर कितना प्रोत्साहित करती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं न कहीं इस वेरिएंट से बचने के लिए अगर आप 3 महीने पहले से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं तो आपको बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी डाउन होता है। यानी हम कहें तो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए ये बूस्टर डोज बहुत जरूरी है, तभी, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका जब तक बेहतर नहीं होगा तब तक आप सुरक्षित नहीं रह सकते। सुरक्षित रहने के लिए बूस्टर डोज बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है और मेंटेन होने की वजह से तमाम इस तरह के वेरिएंट से बचा जा सकता है। तो इस बचाव के लिए बूस्टर डोज की बात यहाँ पे कही जा रही है, लेकिन पैरामीटर क्या होगा, किन किन को जरूरत होगी, बुढ़े बुजुर्ग एज क्या होगी, या बच्चों के लिए क्या होगा, या फिर मिडिल वर्ग के लिए क्या होगा, क्योंकि सबसे अधिक अगर देखा जाए तो जी लगातार जो इस बार केसेस आए हैं उनमें अगर 1-2 केसेस को छोड़ दें तो मैक्सिमम जो केसेस है उनकी एज जो है वो 40 साल से नीचे के हैं। यानी मैक्सिमम 40 से लेकर और 35-33 साल के यूथ जो हैं वो इस वेरिएंट से प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब
उस बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज बड़ा कार्यकारी होगा, कारगर साबित हो सकता है, जैसा कि डॉक्टर वीके पॉल ने अपनी बातों में कहा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, आप अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप फील्ड में घूम रहे हैं और फील्ड में लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, तो आप भी अपना ख्याल रखिए। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, आप भी अपना ख्याल रखना और ताकि हम सब सुरक्षित रह सके और आप भी सुरक्षित रह सके।